Good morning, dear students. Now here we start with the next topic, that is the next cell organelle included in this chapter, and it is the vacuoles. In this chapter so far we have discussed about different types of cell organelles. We had started with the basic components of the cell, which is the plasma membrane, the cytoplasm and the nucleus. तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया था. And then we started with the cytoplasm. That cytoplasm will be having presence of different types of organelles. For example, there was endoplasmic reticulum, there was Golgi complex, lysosomes, mitochondria and plastids, were some of the organelles for which we have already been discussed. Now we are moving on to the last organelle included in this chapter, and that is vacuoles. मतलब बाकी सब organelles जितने important है वैसे ही एक important organelle present है in the plant cells and even in the animal cells, जिसे कहा जाता है vacuoles. ठीक है, तो vacuoles जो होते हैं उनका main function होता है storage. So vacuoles are meant for storage and they are considered to be storage sac. The vacuoles are the storage sac. Vacuoles are the storage sac of the cell. Cell में storage sac. Storage sac means the one which is meant for storing some material. कोई substance को store करने के लिए बना गया है, इसीलिए उसे हम कहते हैं storage sac कहते हैं. तो स्टोरेज सैक जो है ये दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में. बट द साइज ऑफ वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल्स. सो वैक्यूल्स फाउंड इन एनिमल सेल्स are smaller as compared to vacuoles of plant cell. मतलब plant cells जो होते हैं उनमें काफी बड़े साइज के vacuoles होते हैं और animal cells जो होते हैं उनमें बहुत ही छोटे या तो vacuoles नहीं भी होते. Some of the animal cells do not have a vacuole at all. And even if some of the animal cells have a vacuole, the size of vacuole is very small. Whereas the plant cells will be having a large sized vacuole. So in a plant cell, vacuole occupies 50 to 90% of cell volume. ठीक है, तो प्लांट सेल्स जो होते हैं मेच्योर प्लांट सेल्स उसमें एक वैक्यूल जो है दैट विल बी ऑक्यूपाइंग हाउ मच रीजन 50 to 90% सेल वॉल्यूम तो एक वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है. तो प्लांट सेल के अंदर काफी बड़े सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स होते हैं और सेल का मेजर एरिया वैक्यूल्स ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ये इसीलिए करते हैं क्योंकि प्लांट सेल्स में बाहर की तरफ सेल वॉल होती है जिसकी वजह से कोई भी वेस्ट सब्सटेंस या कोई भी एक्सेस ऑफ द मटेरियल को सेल के बाहर डाला नहीं जा सकता. तो ये मटेरियल को कहां पे डाल देते हैं? दे डंप इट इनटू वैक्यूल्स. एनी एक्सेस मटेरियल इन द प्लांट सेल, any excess material in the plant cell is being deposited in this vacuole. Plant cell में कुछ भी extra हो या कुछ भी waste material हो, इन सबको डाल दिया जाता है into the vacuole portion. ठीक है, so the membrane, we will mention that the membrane surrounding the vacuole is known as टोनोप्लास्ट. जैसे हर एक ऑर्गेनल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, each organelle is bound by membrane. Same way vacuoles are also bound by membrane, and this membrane
surrounding the vacuole is known as tonoplast. Tonoplast क्या है? Plasma membrane of the vacuole. Now further we say that the vacuoles in the plant cell contains fluid material and this is known as cell sap. प्लांट सेल के वैक्यूल्स में जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है, वैक्यूल जो है उसके अंदर मैंने कहा कि जो भी प्लांट सेल्स में एक्सेस मटेरियल है वो सारा वैक्यूल में डंप हो जाता है, पर उसके साथ साथ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द वैक्यूल और इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? सेल सैप. एंड द सेल सैप प्रोवाइड्स rigidity and support to the cell. तो सेल जो है उसका शेप मेंटेन रहता है, उसे सपोर्ट करता है द वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल के अंदर फिल्ड है सेल सैप. नाउ दिस vacuoles store excess of substances produced by the cell. मतलब प्लांट से जो कुछ भी बनाता है वो अगर एक्सेस में है तो कहां पे स्टोर हो जाता है? वैक्यूल में. तो कौन से मटेरियल को स्टोर करता है? सच एज एमिनो एसिड्स, शुगर, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, क्या क्या चीजें स्टोर हो जाती है? एमिनो एसिड स्टोर हो जाते हैं, प्रोटीन्स अगर ज्यादा हो तो, शुगर्स हो तो, कोई ऑर्गेनिक एसिड बना हुआ है तो, ये सारी चीजें जाके स्टोर हो जाती है किसमें? वैक्यूल के अंदर. सो वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड है उसे कहते हैं सेल सैप. And vacuole will be storing excess of material. Even waste products will be also accumulated within the vacuole. और एक चीज की बात करते हैं तो हर एक सेल में सिमिलर टाइप की वैक्यूल नहीं होती. जैसे कि अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स में फूड वैक्यूल्स होती है. प्लांट सेल्स की वैक्यूल को कहा जाता है सैप वैक्यूल्स. प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है उसे कहते हैं सैप वैक्यूल, क्योंकि उसमें क्या है? सैप. ठीक है, सैप मतलब वाटर प्लस ऑल दीज सब्सटेंसेस इज कलेक्टिवली कॉल्ड सैप. ठीक है, सैप की जब बात करते हैं तो वो क्या है? वाटर प्लस ऑल दिस मटेरियल लाइक शुगर्स हैं या तो एमिनो एसिड्स हैं या जो कोई भी मटेरियल अंदर प्रेजेंट है, दिस ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल सैप. सो इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, in organisms like amoeba, there is presence of food vacuoles. अमीबा में क्या होता है? फूड वैक्यूल्स. फूड वैक्यूल्स मतलब द वैक्यूल्स विच स्टोर द फूड. So vacuoles which store the food will be the food vacuoles. तो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स होती है. सेम वे organisms like paramecium have contractile vacuoles. Contractile vacuole. तो पैरामीशियम के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से क्या करते हैं? दे रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट. ठीक है, तो इनके पास एक्सक्रीशन करने के लिए कोई ऑर्गन या कोई पर्टिकुलर सेल होता नहीं है. ये तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. तो अगर ये फ्रेश वाटर में रहेंगे तो क्या होगा? Due to osmosis, all that water will enter into that cell. Now, if the water enters into animal cell, we already know what will happen. Cell will burst.
ये बर्स्ट ना हो जाए, इसीलिए इनके जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक्सेस ऑफ वाटर को क्या करते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं, राइट. एंड व्हेन दे रिमूव अप द वाटर, ऑब्वियसली द शेप ऑफ द सेल विल बी मेंटेन. सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल्स. वैक्यूल्स में पहले हमने कहा कि वैक्यूल्स जो है वो स्टोरेज के काम आती है, इसलिए स्टोरेज वैक्यूल्स कहते हैं. एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होती है पर वो बहुत ही छोटी होती है. प्लांट सेल्स में लार्ज साइज वैक्यूल्स होती है. प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स will be occupying 50 to 90% of the volume of the cell. वैक्यूल्स के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, और प्लांट सेल्स की जो वैक्यूल होती है उसमें सैप प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे कहते हैं सैप वैक्यूल्स. सैप वैक्यूल्स में वाटर, शुगर, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड सब कुछ होता है. वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सेस ऑफ सब्सटेंस को भी स्टोर करते हैं और स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो फूड वैक्यूल्स होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं. पैरामीशियम के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन सब ऑर्गेनल से हमें ये चीज पता चलती है दैट ईच सेल इज हैविंग एन एबिलिटी टू फंक्शन just because of presence of the membrane and the organelles. एक सेल अपना सारा काम कैसे कर सकता है? Because it has a plasma membrane and because it has all the organelles within it. And with the help of these organelles, it carries out the activities like respiration, excretion या digestion या absorption, right? ये सारी ही activities ये क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स है हर एक काम को करने के लिए. And therefore the cell is known to be the fundamental unit of life. In the next lecture we will discuss about that how a cell divides and forms a new cell. That will be the last topic of this chapter, which is the cell division.